I welcome you all to this Articleship Summit. And today I welcome you to an enchanting session with one of our students who recently cleared both Group CA Intermediate with flying colors, 61% aggregate, and brilliant marks in almost all these subjects. So I would introduce Vineet to all of you, and Vineet would be joining us shortly. I think he's expected any moment. बुला लेते हैं विनीत को. So now Vineet would be here any moment. मैं आप सबको I'm doing great. Thank you शायरी वाला, विवेक आ जाओ, सब आ जाओ, श्रेयांश, हिमांशी, तेजस्वी, आदित्य, everyone, all of you are welcome to this session. मैं आप सभी के लिए यूजफुल होगा जब हम CA कोर्स की बात करते हैं. Articleship is integral to our course, our curriculum, और बहुत important है, बहुत ही this is kind of we have to understand the significance of articleship. Backbone है हमारा कोर्स का, backbone है ये. This is what provides us all the competitive advantage over other professionals. अगर हम इंडस्ट्री की बात करें, अगर हम सेम सेगमेंट के सेक्टर की बात करें, तो हमें क्या कॉम्पिटिटिव एडवांटेज प्रोवाइड करता है, उसका एक बहुत बड़ा जो पैरामीटर है वो है हमारी आर्टिकलशिप. So we have to talk about articleship and we have to talk about all the essentials questions, क्योंकि जब आप अभी विनीत आ गए हैं स्क्रीन पे, so here मेरे स्क्रीन पे भी और हमारे साथ यहाँ पर विंडो स्क्रीन पर भी. So very good afternoon, ma'am. Welcome you to this session. Heartiest congratulations, Vineet. Thank you, ma'am. Voice has some issues, Vineet. Your voice, I can't hear you. I can't hear you. Just a second. Some voice glitch. Am I audible? Can we refresh or should I reload? There's some issue. I don't think voice आ रही है. Reload करूँ मैं अपने तरफ से. Is this good now? Is it any better, Vineet? Ma'am, am I audible? नहीं, मुझे विनीत की आवाज नहीं आ रही है. I can't hear विनीत. So एक दूसरी चीज हो सकती है कि विनीत फोन फ्री है क्या? Your phone is free. मैं मैसेज कर लेती हूँ. Can I call you and then we can connect over there? स्पीकर लगाया हुआ है तो yes. Okay. So मैं क्या करती हूँ, मैं इसको पेयर करके I'll quickly call विनीत. मैं विनीत को कॉल कर लेती हूँ और वहां से हम फिर बातचीत कर सकते हैं. Hello, Vineet, is this good? Yes, ma'am. Yeah, so can you put down your phone and I'll be able to hear you? Then, of course, we need to take this session over here, no? With the special class. This was a technical glitch. I believe that I'm not able to hear your voice. So what needs to be done? Sorry, you can put your phone down and you can connect over the camera. Is that over the special class? Is that possible? You can put your phone on camera. What? No, just put down your phone because you're there. No, now I can hear you. So you can put down your phone. So I'll be able to hear what you're saying. Okay. Got it? So should I put on speaker? Yeah. No, you don't have to. Yeah, of course. You need to put me on speaker. But in that case, laptop के साथ में merge होगा क्या? वो speaker लगा सकते हैं क्या उस पे हम? Speaker आप कान में लगा सकते हो? Phone के साथ का. So headphones should I put on my phone? Yes. Okay. Am I audible now? Yes, this is good. No? This is good. This is fair. So let me call you over voice. This was WhatsApp. No? Let me call you over voice. फेयर इनफ. ये अरेंजमेंट तो करने पड़ते हैं, टेक्निकल ग्लिचेस की तैयारी तो पूरी तरह से करनी पड़ती है.
and I'm happy Yes. that we were prepared. मेरे को लग रहा था कि ऐसा भी हो सकता है. एक बार और हुआ था एक किसी ड्यूअल सेशन में, थोड़ी सी ऐसी चीजें जो हैं ये हो जाती हैं. Sometimes unexpected जो है ये चीजें होती हैं, and never mind, we are done. Yes. Nit, you can take the call now. You can take the call now. Yes, ma'am. This is good. Disconnect हो गया क्या? Yes, ma'am. Hello. Yeah, we're connected now. Ma'am, it's Somehow, getting disconnected. I don't know why the call drops, Vineet. Is there a problem? Hello. Yes. Are we all connected well? I have no idea why the call is dropping. Again and again, the call drops, right? WhatsApp call. Is this good? Are we connected, Vineet? ओके, नेवर माइंड. चलिए, आवाज तो आ रही है क्या विनीत? अभी आवाज आ रही है क्या? Can you refresh the session once? Can you refresh it once and then perhaps we can try to talk? Am I audible, ma'am? Connected. अभी तो फोन पे कनेक्ट होगा ना. अभी कंप्यूटर पे एक बार निकाल के देखो, फोन पे एक बार कंप्यूटर पे कनेक्ट करके देखो. I don't think I can hear you. Can you hear me? I can hear you. You can, but I can't hear you. I don't get your voice. So that was the only issue, that I wanted to hear you. If you can call me over WhatsApp, can you try calling me over WhatsApp? आज का सेशन सिग्निफिकेंट है. अगर बात ही नहीं कर पाएंगे तो फिर आगे. Am I audible in this manner? I can't hear you. At the moment I can't hear you. So In you this can manner keep also. speaking at the same time. You just have to make me a WhatsApp call. So whatever you speak could be heard by me. I'm wearing my earphones, so this AirPods, so that is not a problem. I mean, I'll be able to hear you. Okay. कॉल किया क्या? WhatsApp कॉल किया क्या विनीत? Yeah. But tell me if I need to call you. Hello. Yes, this is good. So we can continue now, right? Great. No, you'll be audible to everyone. You'll be audible to, yeah, whatever you are speaking, I can also hear now. With this technical glitch, no, the problem becomes that you are talking and everybody can listen to you. But now they're saying कि भैया की आवाज नहीं आ रही. तो आपने उसमें कनेक्ट कर दिया क्या? फोन पे कनेक्ट कर दिया? So अभी आप ना अपना फोन को स्पीकर पे कर सकते हो और आप
अपने इस पे कनेक्ट कर लो, मतलब आप वैसे भी स्पीकर पे ना भी करो तो भी चलेगा. आई डोंट नीड टू, यू डोंट नीड टू हियर मी, आई नीड टू हियर यू. तो फोन को आप ऐसे ही छोड़ दो और आप अपना स्पीकर जो है इससे कनेक्ट कर लो कंप्यूटर से. डन. अब भैया की आवाज आ रही है क्या? नैना, ऑल ऑफ यू कैन हियर विनीत नाउ? तो अभी अब तो विनीत की आवाज आनी चाहिए. विनीत, कैन यू quickly talk about yourself? Just simply say, I'm Vineet Gupta. Huh? Can you all hear Vineet now? Yes, 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 no. नहीं आ रही क्या? पहले तो आ रही थी आवाज, पहले तो आ रही थी. पहले कैसे आ रही थी विनीत? पहले कैसे आ रही थी आवाज? हेडफोन हटाओ आप, तब आपकी आवाज आ रही थी. हेडफोन हटाओ. अभी आ रही क्या आवाज? अभी आ रही है आवाज? नहीं. तो कंप्यूटर पे अभी तो आ रही थी. कंप्यूटर पर तो आई थिंक एवरीबडी वाज एबल टू हियर यू, नो? वॉइस कनेक्टेड है लैपटॉप का या व्हाटएवर डिवाइस यू आर यूजिंग? Hello. Yeah. Am I audible now? Is Vineet audible? Yes, 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 yes. Perfect. Ma'am, should I drop the call? No, no, no. Stay on call. Because Okay. फिर मुझे सुनाई नहीं देगा. Stay on call and now we are set. ठीक है? Perfect. Okay, okay. Because I need to hear you know, whatever you say. Ma'am, Alright. but I think the voice would double now because that voice is also coming and voice on phone is also coming. नहीं, 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 नहीं. Don't worry. Don't put me on speaker. Whatever you speak, I'll be able to hear you. Don't put the phone on speaker. Just keep the phone on. That's it. Okay, okay, okay. ठीक है? Got Yes. it, got it. So this is the idea, guys. Today's session is focused on articleship, and we have Vineet Gupta. Vineet के credentials मैं आपको बता चुकी हूँ. Vineet has been one student I am personally fond of और बहुत पुराने affiliations हैं. This batch, Vineet, is from the first batch at Unacademy that we prepared for foundation exams. May 20 के लिए तैयारी शुरू हुई थी. May 20 cancel हो गया. फिर December 20 was the attempt, and he made us proud then. He made us proud now. So wonderful, Vineet. Heartiest congratulations to you. Thank you, ma'am. And wish you good luck and lots of good wishes for endeavors ahead. How it feels to be a CA finalist? The feeling is very unique, to be honest. Because when the results were out, I was in a class. I was in a class of information technology, the courses. So I was not knowing, should I focus on class or should I take the results? And that was a very different moment for me. But I put the camera on, but I clicked on the link, I checked the result, and I was like, yes, it's done. It's finally done. Great. That's actually a moment of complete ecstasy. आपको समझ नहीं आता? It takes time to sink in. Actually, वो time लगता है. क्या इंटर खत्म हो गया? जैसे फाउंडेशन के बाद ये फीलिंग और भी इंटेंस हो जाती है. So heartiest congratulations. I have no doubts in my mind that we will have a session after CA finals also. So guys, all those of you who are watching, by foundation से ही हम इंटर पर पहुंचने वाले हैं. तो फाउंडेशन का प्लान मेरा तैयार है. 25th May के लिए plan is ready. All of you, I'll just take a minute to run you through these slides. By comprehensive batches आ रहे हैं, fast track batches आ रहे हैं, complete revision plan, test after every chapter, MCQ practice, writing practice, everything is ready. PYQs, MTPs. विनीत के टाइम पर इतना हम शायद नहीं किया करते थे. We're still catching up. हम थोड़ा प्लान कर रहे थे उस समय. हम लोग नई चीजें इंट्रोड्यूस कर रहे थे. So everything is set. My plan is ready. So now expectations from you. अगर अभी तक नहीं जुड़े तो आप जुड़ जाइए. Mega revision series are also launched. Now we have the dates ready. Dates के तो अब आज आपका last paper, I think 2 o'clock आपका economics का ये mega revision होने वाला है. Now let's begin discussion about articleship. So Vineet, अब कैसे क्वेश्चंस आ रहे हैं? अब थोड़ी देर तो होगी, सेटल होने में टाइम लग गया कि भाई अब नाउ आई एम अ सीए फाइनलिस्ट. नाउ व्हाट? नाउ नेक्स्ट व्हाट? Yes, ma'am. Confusion is arising. Where should to go? And firstly,
since it is a COVID time, so should we stick to our hometown or should we step aside? That's also a question. So these things come arising in mind. Where should we go? राइट, सो वेयर डू यू गो? नो, अब यहाँ पे एक सबसे पहली चीज आती है, आर्टिकलशिप हमारे लिए बिल्कुल इंटीग्रल पार्ट है, और आर्टिकलशिप के बिना एक सीए नहीं होता है ना। आर्टिकलशिप तो हमें करनी है, सिंपल सी बात। अब जब आर्टिकलशिप करनी है, मेरे दोनों ग्रुप्स क्लियर भी हो गए हैं, सो shall I target a big 4 organization? जैसे लोग बोलते भाई मैं कैसे ट्राई करूं, मैं माइग्रेट करूं बाहर। विनीत, where are you stationed? Where are you putting up? Right now? Yeah. Right now I'm in Agra. You are in Agra. Yes. So अरे वाह, आज तो आगरा का दिन है। आज अभी CS कैटेगरी पे भी एक स्टूडेंट से बात हुई थी, वो भी आगरा की है, और भाई आज सारा ताजमहल हमारे सामने छाया हुआ है। नाइस। सो विनीत इज ऑल्सो फ्रॉम आगरा। अब कहीं ना कहीं जो क्वेश्चन आता है कि अब हम क्या करें, नेक्स्ट व्हाट, मैं अपने आसपास कोई अच्छी फॉर्म ढूंढूं या फिर मैं प्लान करूं, जैसे बाकी कई सारे स्टूडेंट सजेस्ट करते हैं कि यार यहाँ तो इतना स्कोप नहीं है, यू कैन टारगेट वन ऑफ द मेट्रो सिटीज, है ना। ये सारी चीजें माइंड में आती हैं। हाउ टू प्लान, हाउ टू फिगर इट आउट। गाइस, स्किल्स क्या होने चाहिए, प्रिंसिपल्स क्या ढूंढते हैं अपने आर्टिकल्स में, क्या स्किल्स हमें फोकस करना चाहिए ड्यूरिंग आर्टिकलशिप, इन सब चीजों के बारे में हम बात करेंगे। उससे पहले हम ये बात करते हैं कि देखिए, नेसेसरी ना आपको ढूंढना, आपके लिए होना क्या चाहिए, व्हाट शुड यू हैव व्हेन यू आर टारगेटिंग आर्टिकलशिप। ठीक, तो सबसे जरूरी बातें हैं ये कि यार हाउ टू अप्रोच फर्म्स फॉर आर्टिकलशिप। सबसे पहले आप देखो कि आपको सीए इंटर फाउंडेशन से इंटर लेवल पे फर्क मिला, आप इंटर से फाइनल लेवल पे फर्क मिलेगा। नाउ योर प्रिपरेशन वुड बी फॉर एक्सपर्टीज, एक्सपर्ट लेवल। स्टडी मैट पे भी लिखा हुआ है कि भाई एक्सपर्ट लेवल। विनीता से आओ, विनीता यू, या सो एक्सपर्ट लेवल नॉलेज के लिए आपको स्टडीज में टाइम क्लॉक करना पड़ेगा। दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट। स्टडीज विल फॉर्म अ सिग्निफिकेंट पार्ट ऑफ योर रूटीन। और जिनको लगता है ना 3 इयर्स बहुत ज्यादा है, 3 इयर्स तो आराम से निकल जाएगा, भाई ये 3 इयर्स यूं निकलते हैं, और ऑनेस्टली आपके आर्टिकलशिप के साथ में टाइम कम पड़ जाता है। सब्जेक्ट्स भी आपके पास 8 हैं, यू गॉट 8 सब्जेक्ट्स टू प्रिपेयर, और आपके साथ में इलेक्टिव वगैरह मिला करके वो और भी ज्यादा हो जाता है। सो नाउ आइडिया इज कि सबसे पहले तो आप देख लीजिए, सबसे पहले तो आप अपने एस्पिरेशन, स्पेशली इन केस लाइक विनीत कि जहां पर मार्क्स अच्छे आए, मैंने दोनों ग्रुप्स देखो, सबसे बड़ी बात ये होती है कि आप बिग 4 टारगेट करें, लेकिन बिग 4 भी आपको टारगेट कर रही है कि नहीं। फर्स्ट थिंग, जैसे आपके एस्पिरेशन है कि मुझे बिग 4 में जाना है, मुझे बिग 10 में जाना है, मुझे बिग 20 में, नाउ दे आल्सो हैव अ फिल्टरिंग क्राइटेरिया। तो क्या आप उसमें फिट हो रहे हैं? अब जब आप उसमें फिट हो रहे हैं तो कैसे मैं पता करूं मैम कि मैं उसमें फिट हो रहा हूं कि नहीं? भाई फर्स्ट थिंग इज योर मार्क्स। रिजल्ट्स आर वन क्राइटेरिया फॉर श्योर। ठीक है, अगर आपने बोथ ग्रुप्स क्लियर किया है, आपके बोथ ग्रुप्स क्वालिफाई हो गए, रिजल्ट्स आपके ठीक ठाक है, रैंक वगैरह आपकी बनती है, तो ये एक अच्छा फिल्टरिंग क्राइटेरिया है कि आप यू कैन स्टार्ट अप्लाइंग। सेकेंड थिंग इज यस विसिनिटी, क्योंकि अभी कोविड जो है वो आप सब जानते हैं, हालांकि कहीं ना कहीं नाउ वी आर गेटिंग आउट ऑफ कोविड फेज, वी आर now somehow we are vaccinated and we are trying to get over with all these norms of staying back home और ये सारी चीजें। तो अब आप देख सकते हो, कंसीडर कर सकते हो, डिपेंड्स ऑन व्हाट आर योर एस्पिरेशंस। आपको टारगेट तो यहीं से करना चाहिए। अगर आप करते हैं तो जैसे आप आगरा में हैं, अगर आप दिल्ली की कोई फॉर्म टारगेट करते हो तो आपको कोशिश तो यहीं से करनी चाहिए। एक्टिवेट योर नेटवर्क, योर नेटवर्क कैन हेल्प यू, रेफरल्स कैन हेल्प यू। सी इफ यू आर हेडविंड कि आपको बिग 4 ऑर्गेनाइजेशंस ही ज्वाइन करने हैं, आपको इसकी प्रिपरेशन थोड़ा सा, कम से कम 3 मंथ्स आपको यहाँ पर लगता है। 3 मंथ्स आपको लगता है भाई आपका रिज्यूमे फ्लोट करने के लिए, आपको नेटवर्क रेफरल्स बनाने के लिए। नेक्स्ट ये हो सकता है एक और, जैसे भाई किसी को हो कि मुझे अपने स्टडीज पर भी फोकस करना है एंड दिस इज द कंफर्ट ऑफ माय होम, और मैं यहाँ पे रह के ही मेरे कोई जैसे प्रिंसिपल्स वगैरह, मैं यहाँ पे फर्म में मेरी जान पहचान है। मिड साइज फर्म्स आर ऑल्सो अ ग्रेट ऑप्शन। Mid-sized firms, so we can talk about 7 to 10 partner firms, are a great idea because they offer a variety of work.
जैसे हम चार्टर्ड अकाउंटेंट्स की जब बात करते हैं, एक मेन डिफरेंस समझना, बिग फोर्स में आप बड़ी टीम्स में काम करते हैं और आप स्पेशलाइजेशन की तरफ काम करते हैं. यू विल बी गेटिंग टू वर्क विथ वन टीम ओनली. आप या तो स्टैट ऑडिट कर रहे होंगे या तो आप इंटरनल ऑडिट कर रहे होंगे, है ना, या फिर यूल बी वर्किंग विद सम अदर टीम. तो आपको एक ऐसा मल्टीफेसेटेड एक्सपोजर नहीं मिल पाता है. जबकि अगर आप एक मिड साइज फर्म टारगेट करते हैं तो यू कैन अज्यूम कि यार आपको आराम से इजीली आपको टैक्स वर्क भी आप करोगे, मौका पड़ेगा आप ऑडिट्स भी करने वाले हैं, एंड यू विल बी गेटिंग टू लर्न ऑल द बिजनेस ऑफ द क्लाइंट्स आल्सो. ये नॉर्मल, ये ऐसे ही होता है. वेल, आई एम अ पार्टनर डायरेक्टर इन अ मिड साइज फर्म, दिस इज हाउ थिंग्स फ्लो. तो ये आपके ऊपर देखो, कल्चरली बिल्कुल अलग है. Culturally, a big four organization and a mid-sized firm, small firm in your vicinity will work differently. तो आपको ये अगर है भाई आपका एम्बिशन रहा है, आपको करना है, तो आप बिल्कुल अप्लाई कीजिए, करना चाहिए. दिस इज अ डिफरेंट काइंड ऑफ एन एक्सपोजर. बट इफ यू थिंक आई एम कॉन्फिडेंट एनफ, मेरे को थोड़ा पढ़ाई के लिए ज्यादा टाइम डिवोट करना है एंड आई एम मोर कंफर्टेबल एट होम, दिस कैन ऑल्सो बी अ ग्रेट आइडिया. आपकी आर्टिकलशिप जरूरी है, आपने कहाँ की है, ये कोई बहुत बड़ा एक ऐसा कहना चाहिए डिसाइडिंग फैक्टर नहीं होता आपकी सक्सेस का और आपकी प्रोग्रेस का आगे आफ्टर यू बिकम चार्टर्ड अकाउंटेंट. बिकॉज़ अल्टीमेटली तो सीए ही बन रहे हैं. यस, आप अल्टीमेटली सीए बन रहे हैं एंड योर स्किल्स दैट यू डेवलप ड्यूरिंग द आर्टिकलशिप दैट मैटर. बिजनेस एक्यूमेन ऑफ अ सीए मैटर्स. आप क्लाइंट्स के साथ कैसे इंटरेक्ट करते हैं, क्लाइंट वर्क को, बिजनेस को आप कितना ग्रास्प करते हैं, कितना अंडरस्टैंड करते हैं, दिस मैटर्स. योर कम्युनिकेशन स्किल्स मैटर. हाउ यू डील विद अ सिचुएशन एंड पीपल मैटर्स, राइट. बिकॉज भाई आप सीए बनने के बाद आप या तो अपनी अपनी प्रैक्टिस जो है वो आप स्टैब्लिश करना चाहेंगे, किसी फर्म को आप ज्वाइन करना चाहेंगे, या फिर किसी मल्टीनेशनल कंपनी में आप एम्प्लॉयमेंट चाहेंगे. मे बी लेटर फ्यू ईयर्स डाउन द लाइन यू वांट टू बिकम एन एंटरप्रेन्योर. So all these things certainly talk about only one thing: developing a business acumen, developing correct skill set, and having expert technical knowledge in your subject and area. Right? Yes. So this is the most important part कि हम कैसे आगे के बारे में सोचें. What next in your mind? Let's take up one by one. What curiosities do you have? Then I will give you some inputs from my side. And particularly regarding me, like I am a person who has never stepped out of home a lot. I am a person who has stayed whole of my life inside four walls. तो अगर जिसको ज्यादा एक्सप्लोर करना है उसके लिए क्या बेटर रहेगा? उसको देखो, मेरे हिसाब से if you ask me, you should move out. You should always try and explore opportunities outside. That is helpful to you. कहीं ना कहीं हम लोगों ने जब पढ़ा है ना, फाउंडेशन लेवल पे हम लोग पढ़ते हैं कॉस्मोपॉलिटन, एंड नाउ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स आर रिकॉग्नाइज्ड एज ग्लोबल प्रोफेशनल्स. You should know, and you would know, I'm sure, कि इंडियन अपना ICAI का, Institute of Chartered Accountants of India, has tie-ups with several other countries. और आप जो है एक्सचेंज यहाँ पर होता है काफी ज्यादा. आप लोग आजकल इंडियन चार्टर्ड अकाउंटेंट्स आर रिकॉग्नाइज्ड ग्लोबली. बड़ी सारी जगह आप जा सकते हैं, काम कर सकते हैं, फर्दर कोर्सेज आप परस्यू कर सकते हैं, रिकॉग्निशन बहुत मिलता है. तो आपको ये देखना है कि ऐसा नहीं है कि आप घर पे हमेशा रह जाएंगे. भाई फर्दर व्हाट यू कैन डू इज भाई यू कैन एक्सटेंड दिस फॉर नेक्स्ट 3 years, कंप्लीट योर कोर्स एंड मे बी देन टारगेट सम अपॉर्चुनिटी. Or if you think you are prepared, अभी now you are prepared to take on next exposure जो है, अब उससे आप अपने आप को थोड़ी ज्यादा मजबूती देना चाहते हैं, इंडिपेंडेंस आप एंजॉय करना चाहते हैं या ट्राई करना चाहते हैं. भाई जैसे इन योर केस यू सेड कि अभी तक मैं रहा ही नहीं. So there's no harm in trying independence, trying to stay independent, managing your own things, managing your articleship, managing your studies, which is a significant part. So that certainly depends. और दूसरी बहुत बड़ी बात आती है, जब किसी कैंडिडेट को बाहर रहना है तो फाइनेंसेस भी इन्वॉल्व होते हैं, है ना. सो ये एक बहुत बड़ा फैक्टर भी, आपकी फैमिली कितना सपोर्ट कर सकती है, किस तरीके से अफोर्डेबिलिटी आपकी बनती है कि आप बाहर रहें, उसको मतलब स्पॉन्सरशिप उसके लिए चाहिए होती है. तो ये सारी बातें ध्यान में रखिए. देखो सबसे बड़ी बात है कि ये एक ऐसा कोर्स है जो मिनिमम कहना चाहिए एक्सपेंडिचर इसमें इन्वॉल्व है. अगर हम बात करें, दिस इज वन प्रीमियम कोर्स
which is comparable to so many management courses, this that, बड़े सारे अच्छे अच्छे colleges की हम बात करते हैं, सब कहीं ना कहीं comparable हैं. और फीस अगर आप देखते हो ना, अगर रजिस्ट्रेशन फीस सब मिला करके अगर हम बात करें स्टडी मटेरियल वगैरह की, it doesn't even cross 1 lakh. It is 70 to 80,000 rupees. और ये ना इंस्टीट्यूट स्टाइपेंड से वापस कर देती है. आप अगर इंस्टीट्यूट के नॉर्म्स देखें, अभी जब आपकी स्टाइपेंड, मिनिमम स्टाइपेंड जो है, उससे अगर आप इसको मल्टीप्लाई करके देखते हैं ना, 12 months, तो ये वापस हो जाती है आपकी. तो ये अगर आप देखा जाए, दिस इज वन कोर्स दैट प्रोवाइड्स यू स्टैंडिंग विद ग्लोबली रिकॉग्नाइज्ड प्रोफेशनल्स, और अफोर्डेबल है, हर लेवल पर अफोर्डेबल है, मेरिट बेस्ड है, कोई रिजर्वेशन नहीं है, कुछ नहीं है, रिजल्ट्स आप लोग देख चुके हैं. यस, दैट्स द बेस्ट पार्ट. सो कुछ जो बहुत इंपॉर्टेंट बातें हैं ना, जो आपको मैं अपनी तरफ से बताना चाहती हूँ कि भाई जब भी आप लोग कोई फर्म टारगेट करते हैं, मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर्स, मार्केट रेपुटेशन ऑफ द फर्म. दिस इज द बेस्ट वे टू टारगेट अ फर्म. विसिनिटी कितनी दूर है, वर्किंग आवर्स, ये सारी चीजें ना 6 महीने के बाद प्रॉब्लम क्रिएट करती है. वो ट्रांसफर फॉर्म 109 मेरे प्रिंसिपल साइन नहीं कर रहे. अब आपको क्यों लगता है इट इज सो इजी कि आप एवरी फ्यू मंथ्स यू कैन गेट अ ट्रांसफर फॉर्म साइन? मिनिमम 12 मंथ्स का पीरियड क्यों जरूरी, क्यों रेकमेंडेड है कि आप मिनिमम 12 मंथ्स यू शुड स्टे विद द प्रिंसिपल? और अब तो आपके पास इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग का भी ऑप्शन है कि भाई 18 मंथ्स यू कैन स्पेंड इन इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग. Considering all the aspects, considering your own inclination to balance, और maybe आपको मालूम होगा ना कि आपको स्टडीज में कितना जोर लगाने की जरूरत है, आपका ग्रास्प स्टडीज में कैसा है, कितने जल्दी आप पढ़ाई जो है कवर कर पाते हैं, या अगर आपने जैसे लॉन्ग वर्किंग आवर्स वाली जगह ले ली, जैसे आप बिग फोर्स में गए या आपने इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग ली, थोड़ा सा वर्किंग आवर्स आर स्ट्रेच्ड बियॉन्ड नॉर्मल. अब मैं उसको पढ़ाई के साथ कैसे बैलेंस करूंगा, तो ये आपका अपना डिसीजन है. This nobody can obviously dictate and nobody would be able to guide you with guarantee कि तुम ऐसे करो या तुम ऐसे करो. जैसे for me, it was more important to balance studies. I was an average student. I preferred a mid-sized firm जहां मेरे को काम का ढेर एक्सपोजर मिला, जहां मेरे को पढ़ाई के लिए भी टाइम मिला, जहां पेरेंट्स हमारे प्रिंसिपल्स हमें गाइड कर पाए कि अच्छा ठीक है, यू कैन पार्टिसिपेट इन को करिकुलर. भाई हमारे टाइम पे ऑनलाइन इतना नहीं हुआ करता था, सो सारे स्टूडेंट कॉन्फ्रेंसेस, सेमिनार्स, उनमें हम पार्टिसिपेट कर पाए, सारे कोर्सेज हम टाइमली कंप्लीट कर पाए. सो ये सारी चीजें. सो दिस इज पर्सनल चॉइस. देयर आर मेनी स्टूडेंट्स हु प्रेफर टू वर्क विद स्मॉल कंसर्न्स, स्मॉल फर्म्स, क्योंकि वहां उनको डायरेक्ट एक्सपोजर मिलता है, इसके अलावा पढ़ाई के लिए भी टाइम अच्छा निकल आता है. तो बिल्कुल इसमें मतलब कोई ऐसा नहीं है कि हार्ड एंड फास्ट रूल है. एंड ऑल दी फर्म्स हैव रिकॉग्निशन, बट यू हैव टू बी वर्किंग अंडर अ प्रैक्टिसिंग सीए. दैट इज द आइडिया, राइट? सो लीव वगैरह, कई जगह लीव के बड़े कंस्ट्रेंट्स होते हैं कि अगर आपने बोथ ग्रुप्स नहीं किया है, जब तक आपको, जैसे अभी आपके बोथ ग्रुप्स है तो आपको 2 मंथ्स की लीव मिल जाएगी. लेकिन अगर आपका एक ग्रुप है, या अगर आपने बाई चांस आपका थोड़ा सा धीरे चल रहा है, तो भाई आपको लीव में प्रॉब्लम आएगा. टेक 3 वीक्स, व्हाई आर यू टेकिंग 4 वीक्स ऑफ लीव और 5 वीक्स और 6 वीक्स ऑफ लीव? तो ये सारी चीजें, जहां पर लीव को लेकर के बहुत ज्यादा रिजिडिटी ना हो, ये सारी चीजें. फर्म का कल्चर कैसा है, बाकी स्टूडेंट्स जो वहां पर हैं उनका क्या कहना है, ये सारी चीजें इंश्योर किए बिना, व्हाट इज द नेचर ऑफ वर्क, विल दैट इंटरेस्ट यू, व्हाट इज द फर्म इन्वॉल्व्ड इन, स्टाइपेंड किस तरीके का दिया जाता है. कई सारे स्टूडेंट्स को बड़ा रॉश होता है. अब ऐसा लगता है ना कि अब हम सीए इंटर हो गए तो अब एक्चुअली हमारा मतलब स्टाइपेंड फ्लो होना चाहिए. क्यों नहीं मिल रहा हमें उतना स्टाइपेंड जितना किसी को 20K 30K? सो वी कंपेयर विद द स्टाइपेंड इन मेट्रो सिटीज, बट वी नेवर कंपेयर द वर्किंग आवर्स. हमको लीव भी पूरी चाहिए, हमको स्टाइपेंड भी पूरा चाहिए, लेकिन काम में हमको जो है उसमें भी हमको लिमिट होनी चाहिए, भाई हम इतने ही घंटे करेंगे. सो ऑल दीज फैक्टर्स हैव टू बी थॉट अबाउट. ठीक है, ये सब एसोसिएटेड है. भाई जितना जिस तरीके की जगह पे, जैसे बॉम्बे में और मे बी मेट्रो सिटीज में, टॉकिंग अबाउट बैंगलोर और मे बी सम फर्म, सो इफ यू स्ट्रेच बियॉन्ड द नॉर्मल वर्किंग आवर्स, इफ समबडी हैज स्कोर्ड वेल एग्जाम्स में, अगर उनके टारगेट, इसमें बहुत क्लियर, कई जगह तो डिमार्केशन भी होता है. फर्स्ट ईयर विल पे दिस मच, सेकंड ईयर विल पे दिस मच, सीनियर आर्टिकल्स विल बी पेड दिस मच, which is fair, right? So all these things have to be considered well while you target your articleship. पहले से सोचना चाहिए ये सब, बाद में हल्ला करके ट्रांसफर लेना और ये सारी चीजें आपका ही टेन्योर स्पॉइल करती हैं, आपका टाइम खराब होता है उसमें, और हमारे पास टाइम है नहीं. अंडरस्टूड? सो इससे आपको कुछ ना कुछ जरूर जो है
आइडिया मिलेगा आगे बढ़ने का। नेक्स्ट विनीत एकदम सोच में पड़ गया, यू कैन आस्क मोर। Suppose if we wanna step out, so कैसा कहा जाता है कि अगर आप बाहर जाओ तो आप डायरेक्टली बिग फोर को ही अप्रोच करो, तो ऐसा जरूरी है या बाहर जाके आप मीडियोकर को भी अप्रोच कर सकते हो? Vinit, first of all, I would say one thing. Stop using the word mediocre. Okay. Mediocre का मीनिंग पता है क्या होता है? Mediocre is not of great quality or apt quality. ठीक है? We are chartered accountants. Okay. Every chartered accountant is qualified to deliver quality. ठीक है? We have already attained that minimum benchmark set. That is why we are chartered accountants. So no firm is a mediocre firm. Mediocre is a bad word to be used. Sure. ठीक है? Mid-size firms, medium-size firms, mid-size firms, middle-size firms. This is not to be confused with mediocre. Not even smallest of firms are mediocre. हो सकता है कोई चार्टर्ड अकाउंटेंट अपना प्रोप्राइटरशिप एंजॉय करता है, उनकी क्वालिटी बहुत अच्छी है, वो अपने आसपास के क्लाइंट्स को डिलीवर करते हैं. दैट इज नॉट अ मीडियोकर फर्म. ठीक है? दैट इज फर्स्ट थिंग. दूसरी चीज, अगर आप कह रहे हो कि आपको बाहर जाना है, सबसे पहले अगर आपका बाहर जाने का प्लान है, इफ यू प्लान टू मूव आउट, शुड हैव प्रीसीडिंग 2 months प्रिपरेशन. ठीक है? प्लान टू मूव आउट ये रैंडम नहीं होना चाहिए. You should have something in hand before you plan to move out. आजकल वीडियो इंटरव्यूज पॉसिबल हैं, आजकल कॉल्स पॉसिबल हैं. ठीक है? So you should ensure take at least 2 months to network. To all my students, I prefer that they join LinkedIn. It's a great platform to connect with networks. ठीक है? 2 months network, connect with people and find out opportunities. ठीक? Network, referrals, opportunities. ये बहुत जरूरी है. ठीक? इसके बाद आप इन सारे अपॉर्चुनिटीज को टारगेट करके जहां जहां से आपको कॉल्स आए हैं, ये सब आप प्रिपेयर करके, इनका आप एक लिस्ट करके, देन यू शुड ट्राई एंड टेक अ फर्म कॉल. राइट? टेक अ फर्म कॉल एंड मेक अ चॉइस, मेक अ डिसीजन कि अब मुझे कहाँ जाना चाहिए, कैसे जाना चाहिए, कैसे मुझे जो है अब प्रोसीड करना चाहिए. एटलीस्ट मेक श्योर कि आपने एटलीस्ट 2-3 जगह समझी है चीजें कि किस तरीके का प्रोफाइल होगा एक आर्टिकल क्या, या हाउ शुड आई अप्रोच दिस. और अगर इंटरव्यू एक्सपीरियंस चाहिए, गो अराउंड इन आगरा. से फॉर एग्जाम्पल, इफ यू आर इन आगरा, try to take your papers, move around at Agra and try to connect with the big firms. What do they say? Every region has got some big firms, small firms. Sure. So get a hold of all this list etc. कि मेरा अगर मैं 1 to 10 मुझे लिस्ट करना है अपने एरिया में, तो कौन सी फर्म्स होंगी, आप उनके साथ जाके आप कनेक्ट कर सकते हैं. से नेवर लूज हार्ट. एक तो विनीत के तो दोनों ग्रुप्स हो गए. ठीक है? अगर यहाँ पर कोई ऐसे स्टूडेंट्स हैं जो देख रहे हैं कि मेरा तो एक ही ग्रुप हुआ, या मेरा तो सेकंड ग्रुप में 2 अटेम्प्ट लग गए, मैम अब मेरा क्या होगा? Will attempts matter? Attempts will matter if you make them matter to you. ठीक है? सबसे बड़ी बात ये आपको पता होना चाहिए कि आपको अपना प्रेजेंटेशन कैसे रखना है, आपको अपने आप को, आपके ऊपर कितना रिफ्लेक्शन आ रहा है उस अटेम्प्ट का जो आपने लूज कर दी. भाई आप पास हो गए, ये भी तो बड़ी बात है कि आपने अपना कमिटमेंट छोड़ा नहीं और आप पास हो गए. आप नाउ यू आर अ CA फाइनलिस्ट. So that is more important. Focus on your strengths. Project your strengths, both in resume and the interview. Understood? That is the most important part. When you go and meet with any principal, any chartered accountant, वो ऐसा थोड़ी होता खड़े होके कि भाई आप शुरू करते हो कि सर मेरा एक अटेम्प्ट पे नहीं हुआ था, मेरा 4 अटेम्प्ट में क्लियर हुआ है. No. The first thing is about the first impression, the conversation, the way you conduct, the way you talk about your results, your aspirations, and why you want to join their firms. Simple सी बात है. That makes a difference. Even in big 4 organizations, मेरे पास ऐसे कितने examples हैं. Guys, I am an active blogger over LinkedIn and I have lots and lots of you connected over there with me. तो ये भी आप समझिए कि जो भी बिग फर्म्स भी होती हैं, बिग 4, बिग 10 में भी अगर आप जाते हो, योर कम्युनिकेशन, योर प्रोजेक्शन ऑफ योर स्किल सेट मैटर्स अ लॉट. कई सारे ऐसे हैं जो पोस्ट ग्रुप्स है, क्लियर है, रैंक्स भी है, लेकिन perhaps they didn't get selected. ठीक? Referrals also matter. If you have a strong referral, it may matter.
when people are at a place where they can influence, they can push you, maybe that matters. इसलिए मैंने कहा network, referrals, ये सब आपको थोड़ा टाइम पहले से एक्टिवेट कर देना चाहिए, ठीक है? So now can be the right time for all of you. अच्छा, ऋतु पूछ रही है भैया आप कहाँ से हो? तो भैया इस समय आगरा से हैं और आगरा में बैठे हैं. साई हैज अ क्वेश्चन, आपने फर्स्ट अटेम्प्ट में फाउंडेशन इंटर बोथ ग्रुप्स क्लियर किया है? यस, है ना? Yes. मैंने ये इंट्रोडक्शन में ही बोला था, तो उन्होंने ये बिल्कुल क्लियर किया. फाउंडेशन में आपसे थोड़ा सा पहले बैठा करते थे यहाँ क्लासेस में, और अभी अभी इंटर का एग्जाम क्लियर करके आए हैं. विनीत, व्हाट नेक्स्ट? रिज्यूमे? इज रिज्यूमे रेडी? No, not till now. Not as yet, है ना? Yes. तो आपको टाइम आ गया है जब फाउंडेशन वाली स्किल्स अप्लाई की जाए, जो फाउंडेशन में रिज्यूमे राइटिंग सीखा था. हाँ, Yes. जो मैम बोलती थी ऐसे करो, ऐसे बनाओ, ऐसे बनाओ, अब क्यों ना हम उसको अप्लाई करें. सो गाइज, एसेंशियली आपको रिज्यूमे के लिए क्या चाहिए? आर्टिकलशिप टारगेट कर रहे हो आप, आपके रिज्यूमे में क्या क्या हाईलाइट्स होने चाहिए? देखो, किसी को भी ना अपनी फर्म का नाम प्रिंट में देख के, सुन के, अपने बारे में, अगर मैं विनीत के बारे में जब मैं बोलूं कि विनीत हैज बीन वन ऑफ माय बेस्ट स्टूडेंट्स, he cleared foundation in first attempt, now he prepared for inter so well, he's from Agra. Vineet would love to hear this from me, right? When you get to hear about yourself from someone else, or you read about yourself in print, it excites you. Yes. ये हर एक के लिए applicable है, ठीक है? Your inclination to join that firm and stay there. Say XYZ and Associates Chartered Accountants. So why do you want to join XYZ and Associates Chartered Accountants? There are so many other firms. Why do you want? What gets you to connect with them? And what is your plan to stay there? What do you plan to learn from them? ये passion आपका towards the firm, domain, area, क्या वो firm करती है, ये पता लगाओ. This is some research is involved here. So that little bit of research is mandatory on every candidate's part before they approach articleship and resume planning. ठीक है? तो आप जब भी, जैसे चाहे बाहर आप टारगेट करो, चाहे आप अपने सिटी में टारगेट करो, बट आपका टारगेट क्लियर और स्पेसिफिक होना चाहिए. वेग नहीं होता कि मैंने आज फ्लोट कर दिया रिज्यूमे, अब जो फर्म उसको शॉर्टलिस्ट करेगी, यार मैं तो उसी के लिए तैयार हो जाऊंगा, या देखा जाएगा क्या होता है, या 4 महीने बाद कुछ समझ नहीं आया तो अपने आसपास कहीं भी जो मुझे बोलेगा आ जाओ, मैं उसके यहाँ चला जाऊंगा. दिस इज अ वेरी वेग आइडिया, राइट? सो व्हेन यू आर सो स्पेसिफिक, स्पेशली जब आप रिजल्ट आ गए हैं और आप बात कर रहे हो आगे के आपके प्लान्स क्लियर हैं, आगे के आपके एस्पिरेशंस क्लियर है, यू आर एम्बिशियस, देन व्हाई नॉट ट्राई फॉर ऑल दिस? व्हाई नॉट ट्राई एंड व्हाई नॉट मेक अ कंक्रीट फर्म प्लान? और प्लान वर्कआउट करता है इस तरीके से. अगर हम कंक्रीट प्लानिंग करते हैं, दिस वर्क्स आउट इन 99% केसेस. ठीक? अगर आपके, देखो भाई, किसी सब्जेक्ट में कम भी है मार्क्स, या मेरा ग्रुप नहीं भी क्लियर हुआ, अगर मेरा कुछ एक्सेप्शनल, कहीं मुझे एग्जाम्पशन मिली थी पहले, दैट आई वुड वांट टू हाईलाइट. ठीक? ऐसे ओवरऑल 61% मार्क्स के, भाई यू मे वांट टू हाईलाइट. यूजुअली आई वुड से परसेंटेज मत डालो. अगर किसी का एग्जैक्टली 50 है, किसी सब्जेक्ट में 40 था, मत डालो परसेंटेज. टेबल बना के सारे मार्क्स मत डालो. ट्राई टू रिज्यूमे इज ऑल अबाउट हाईलाइटिंग योर स्ट्रेंथ्स. Yes. तो उसमें वही चीजें डालनी चाहिए जो आपकी स्ट्रेंथ्स को इंडिकेट करे, राइट? जैसे अब योर इंटरेस्ट, मैंने बार बार नेटवर्किंग के लिए क्यों बोला? अभी देखना विनीत, जस्ट लाइक यू, देयर आर सो मेनी इंटर स्टूडेंट्स हु आर कनेक्टेड विद मी, and they have been making these videos and writing white paper, writing many articles about the technical topics. So this acts as samples. All these articles etc., they act as samples. कि अगर आप अपना इंटरेस्ट बोलो, जैसे आप किसी टैक्स फॉर्म में जा रहे हो कि सर मैम आई हैव इंटरेस्ट इन टैक्स एंड आई प्लान टू स्टे विथ यू through my articleship. May I be कम से कम industrial training तक, I plan to stay with you and I'll be obliged if you hire me as your article. So how do I consider your interest? You know, so if you say that you are interested, what have you done? Have you tried to find out what's in this? Maybe tax की अगर हम बात करें, भाई इंटरनेशनल टैक्सेशन अलग, अब तो GST आ गया है, तो गुड्स एंड सर्विस टैक्सेस हो गए, डायरेक्ट टैक्सेस हो गए. टैक्स में ही अंदर कितना हमारा सेग्रीगेशन है, तो टॉक अबाउट दैट. What interests you? अब आप बोलो कि GST इंटरेस्ट में, या फिर आप बोलो कि डायरेक्ट टैक्सेस इंटरेस्ट में, तो आपने क्या कभी कोई रिसर्च करने की कोशिश की है? क्या आपने कभी कुछ उसके बारे में जो है ढूंढने की, लिखने की कोशिश की? सो ऑल दीज थिंग्स शुड बी अंडर योर प्रिपरेशन. इन सब चीजों की प्रिपरेशन आपकी होनी चाहिए. ठीक?
आपका वर्क, कंट्रीब्यूशन, अचीवमेंट, ये सब आप फाउंडेशन लेवल से लेके अपने कॉलेज का भी इंक्लूड कर सकते हैं. को-करिकुलर्स भी आप अपने इंक्लूड कर सकते हैं. By you represented some student एसोसिएशन और मे बी ICI के अगर कुछ ऐसे सेमिनार्स हुए हैं, वेबिनार्स हुए, कि आपने उसमें पार्टिसिपेट किया. एवर यू टॉक्ड अबाउट सम टेक्निकल टॉपिक्स, एवर यू प्रेजेंटेड एनी टेक्निकल पेपर्स, ये सारी चीजें हम डिस्कस कर सकते हैं. को करिकुलर जरूर मेंशन करना चाहिए. क्वालिफिकेशन सो फार कोई भी, स्पेशली टेक्नोलॉजी रिलेटेड अगर आपका कोई सर्टिफिकेशन वगैरह है तो वो देखो, आजकल कोई भी प्रिंसिपल मैं अगर अपनी फर्म में हायर करूं तो मैं एक आर्टिकल को फर्दर ट्रेन करने के बजाय मैं चाहूंगी कि भाई कोई मुझे ऐसा बच्चा मिल जाए जिसके साथ मुझे कम सर्फ होना पड़े, जिसको थोड़ा सा टेक्नोलॉजी वाइज भी, इफ ही और शी इज savvy, it works in favor, right? So it helps. This certainly helps. टेक्नोलॉजी प्रोफिशिएंसी और आपका बाकी कोई सर्टिफिकेशन, कोई आप जैसे CSP कर रहे हो, मान लो आप CA के साथ, भाई यू आर परस्यूइंग CS also. So I'll definitely be helped in other law related matters, secretarial practice related matters, मुझे जरूर हेल्प मिलेगी. So why not hire विनीत? ठीक. So हर फर्म के जब प्रेफरेंसेस होते हैं तो अगर आपको रिज्यूमे कायदे से बना हो तो वो बहुत हेल्पफुल हो सकता है. Definitely. Yeah. Yes. So anything else that you want to ask? Proforma, format, कुछ ऐसे skills? फोकस करना है. विनीत बहुत सोच में है कि अब तो बहुत सारा काम है यहाँ, तो लग रहा है, और मैं तो क्लियर करके लग रहा था अरे ये तो एक तरफ छुट्टी हुई, लेकिन अब काम ही काम नजर आ रहा है चारों तरफ. Yes, it's actually a lot of preparation. Now you are a CA finalist, and every success comes with a lot of responsibilities also. So now for next levels, a lot of preparation would be required. स्पेशली अगर आपको अच्छा करना है. अरे तो एक्सेप्शनल मार्क्स मतलब होता है एग्जाम्पशंस वगैरह. अगर आपके 60+ किसी सब्जेक्ट में मार्क्स हैं, फर्स्ट क्लास है और 70% डिस्टिंक्शन माना जाता है अपने आप, तो वो आप ले सकते हैं यहाँ पर. लेकिन क्रिटिकल स्किल्स जो मानी जाती है ना इस कोर्स के लिए, वो है आपका कम्युनिकेशन एंड कॉरेस्पॉन्डेंस. क्योंकि एक CA का ऑफिस जाके देख लो या एक CA का रोल देख लो, आप कहीं पर भी स्ट्रेटेजिक पोजीशन में होता है, बिना कॉरेस्पॉन्डेंस के, बिना कम्युनिकेशन के no CA can function. किसी भी रोल में, आप CFO हो, CTO हो, फाइनेंस मैनेजर, टैक्स मैनेजर, और यू आर इन अ क्लाइंट सर्विंग रोल, यू आर अ प्रोपरेटर, यू वर्क इन अ फर्म, यू आर इन आर्टिकल्स जाते हैं पूरे दिन क्लाइंट्स के साथ, हम डायरेक्टली जो है वहां पर उनका कम्युनिकेशन रहता है. सो ये सारी चीजें ना, इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग. आज की डेट में वो कौन से मूवी का डायलॉग है ना, विनीत इज जस्ट लाइक मी, डजंट वॉच मूवीज एंड ऑल, फिर भी कि आज के डेट पर डायमंड की कीमत नहीं है, डेटा की कीमत है. हाँ, वो इंफॉर्मेशन इज मोर वैल्यूएबल, मोर एक्सपेंसिव. सो इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग, भाई डेटा से इंफॉर्मेशन प्रोसेस करना, दिस इज अ वैल्यूएबल स्किल. गूगलिंग हैज कम अप विद अ वैल्यूएबल स्किल, कम अप एज अ वैल्यूएबल स्किल. सो ये सारी चीजें आप हाईलाइट कर सकते हो, बशर्ते यू कैन प्रूव योर एक्सपर्टीज इन दिस, कि भाई आई कैन एक्चुअली रीड डेटा, आई कैन गेट वैल्यूएबल इंफॉर्मेशन फ्रॉम डेटा. नेटवर्किंग, until you're there in some, अब ये ऐसा नहीं कि नेटवर्किंग मैं तो इंस्टा पे हूँ, मैं रील्स बनाता हूँ तो मेरा नेटवर्क अच्छा है. Well, we're talking about your professional network. We're not talking about your entertainment network. We are talking about your professional network. LinkedIn can be a great place. Again and again, I suggest to all my students, जिन्होंने अभी तक अपना अकाउंट वगैरह नहीं बनाया, अपना प्रोफाइल वहां पर नहीं सेटअप किया, complete your profile. Be there. Try to connect with all others from the same fraternity and also like-minded people. You never know. आजकल network is net worth. आपको कहाँ किसके रेफरल की जरूरत पड़ जाए. और ऐसा नहीं होता कि आज बनाया और आज ही हमने शुरू कर दिया कि यार today I made a profile, अब चलो कल से सब मेरे को रेफर करो. एकदम बेकार प्लेटफॉर्म है, कोई यहाँ रेफर करता ही नहीं. You have to stay there for a few weeks at least. You have to start networking. Networking also means to connect with people, to engage with them, to support them, to help them, and then only you can expect it will come back to you. It takes at least a few weeks to float, right? To link up with people. Computers, technology proficiency. This is technology, जो कोई भी technology related skills है, जो हम जिसको बोलते हैं digitization of things. This is booming. Right? Online, studies online, work online, everything is online. So we have to make ourselves technology friendly. आपके पास choice नहीं है कि यार technology को we can avoid. We cannot. So any new certification,
Any proficiency with technology will be helpful. Any. अभी आजकल नए कंसेप्ट्स हैं भाई, ब्लॉकचेन है, आप अभी नया जैसे हम एआई की बात करते हैं, हम बीआई की बात करते हैं, ये सब के बारे में आपको जानकारी थोड़ी थोड़ी लेनी चाहिए, क्या पता आपको कहाँ इंटरेस्ट आ जाए। रिलेशनशिप मैनेजमेंट इज मोस्ट क्रिटिकल। ये सबसे ज्यादा यही तो होता है ना, जो हम प्रिंसिपल्स के साथ में कंफ्लिक्ट हो गया, बाकी सीनियर जूनियर आर्टिकल्स में सुना ही होगा, अब तो विनीत अब तो फाइनलिस्ट हो गए, सुनते ही हैं हम तो, यार ये तो प्रिंसिपल के बारे में बहुत अच्छी बात है, तो सुनने को कम ही मिलती है। हर वो आर्टिकल ही क्या जो प्रिंसिपल के नाम से कभी रोया नहीं है ना, वो ये तो ऐसा नेचुरल रिलेशनशिप है, ये फ्लोज लाइक दैट। सो भाई रिलेशनशिप मैनेजमेंट इज क्रिटिकल एंड दिस इज एन आर्ट। थोड़ा थोड़ा रेजिलियंस डेवलप करना भी जरूरी है। The resilience has to be developed over a period. You have to accept their experience, their seniority, and we have to move on. भाई कहीं ना कहीं हमको भी आगे बढ़ना है अपने करियर में। पहले हम लोगों के टाइम पे थोड़ा ज्यादा भी, उसको हम फिर भी ह्यूमिलेशन नहीं कहते थे। जैसे मेरे को अभी भी याद है, मेरे सामने मेरी रिपोर्ट ऐसे जब मैंने पहली बार बनाई थी, उसको फाड़ के डस्टबिन में फेंक दिया गया था। सो मैं रोते हुए बाहर आई थी और बाहर सारे हंस रहे थे कि हो गया, तुम्हारे साथ भी ऐसा हो गया। मतलब दैट वाज अ नॉर्म एंड दैट इज हाउ यू बिल्ड रेजिलियंस। कि अच्छा चलो ठीक है, हुआ तो हुआ, नेक्स्ट टाइम आई विल बी मोर केयरफुल, आई विल बी मोर कंसर्न विद व्हाट आई एम प्रिपेयरिंग, हाउ आई एम प्रिपेयरिंग द रिपोर्ट, व्हाट आई एम पुटिंग इन द रिपोर्ट। ठीक, तो एडेप्टेबिलिटी, रेजिलियंस, these are the most important qualities. Problem solving, ethics and integrity, ये आपके सीए करियर की most critical skills हैं। And now let me give you a sample. ये आप देख सकते हो रिज्यूमे के लिए, ये टेम्पलेट आपको हेल्प कर सकती है। ठीक है, एक अगर याद होगा तो ये टेम्पलेट मैंने तुमको फाउंडेशन में कराई थी, इफ एट ऑल यू विल रिमेंबर। अगर ये मैंने कहा था कि फाउंडेशन का रिज्यूमे राइटिंग वाला सेक्शन अपने पास रख लेना, ये 1-2 साल के बाद काम आएगा, मैंने कहा था। एंड नाउ सी यू आर देयर, एग्जैक्टली आफ्टर 1 year यू विल गेट टू यूज दिस। यहाँ पर ऑब्जेक्टिव बिल्कुल क्लियर है, तो एसेस द फर्म आई जॉइन विथ ऑल माई पोटेंशियल। इसको आप थोड़ा सा ट्विस्ट करके, चेंज करके, अपने हिसाब से लैंग्वेज को मॉडिफाई करके आप देख सकते हैं कि भाई मेरे को अपने लिए आर्टिकलशिप चाहिए। यू कैन पुट द वर्ड आर्टिकलशिप यहाँ पर है, आप और भी उसको चाहें तो मॉडिफाई कर सकते हैं। टेक्निकल स्किल्स आपकी रिलेटेड टू सब्जेक्ट्स होंगी। थ्योरेटिकल नॉलेज आपको वो फोकस करना है कि भाई एट द मोमेंट मुझे प्रैक्टिकल नॉलेज नहीं है, बट आई एम हियर टू गेन प्रैक्टिकल नॉलेज। अकाउंटिंग, ऑडिटिंग, लॉज, ये आप जो सब्जेक्ट्स कर चुके हैं वो आप स्पेसिफाई कर सकते हैं। ठीक, एजुकेशनल बैकग्राउंड, सी दिस, जो भी आप कर रहे हैं, सीए, सीएमए, सीएस प्रोग्राम आप कर रहे हैं, कॉमर्स ग्रेजुएट अगर आप हैं, क्योंकि मोस्टली आपका जैसे इंटर खत्म होते होते आपकी ग्रेजुएशन भी टुवर्ड्स एंड हो गया अभी ना, आपका क्या फाइनल ईयर हो गया होगा या आप देने वाले हो गए अभी फाइनल ईयर का एग्जाम, है ना? Yes. तो अभी पास सीनियर सेकेंडरी अगर आपने जो आपका 12th के मार्क्स है वो आप मार्क्स लिख सकते हैं। सी गाइस, नोवेयर इट इज मैंडेटरी टू मार्क योर परसेंटेज। कई लोग को बहुत चिंता होती है, कई कुछ तो ऐसे भी आए थे कि जिन्होंने कहा कि हमारा ना स्कूल में 50% मार्क्स थे, बट सीए वी हैव क्लियर्ड इन सिंगल अटेम्प्ट्स, डू आई स्टिल पुट माय 12th grade marks here? So there's no requirement of putting your marks here. आप अगर सिर्फ अपना ईयर भी लिख देते हो, बोर्ड लिख देते हो, वो भी सफिशिएंट है। ओनली रिक्वायरमेंट इज टू पुट योर बैकग्राउंड, एजुकेशनल बैकग्राउंड। तो जो आपको लगता है आपका हाईलाइट है आप वो लिख सकते हो, कोई जरूरी नहीं कि आप टेबल बनाओ, मार्क्स लिखो। व्हाटएवर आर योर हाईलाइट्स, एजुकेशनल हाईलाइट्स, वो आप डाल सकते हो। ठीक, इंटरपर्सनल स्किल्स आर इंपॉर्टेंट। आप जो भी यहाँ पर स्ट्रेंथ्स डालना चाहे, लॉन्ग पीरियड हम वर्क कर सकते हैं, गुड ओरल कम्युनिकेशन, गुड रिटन कम्युनिकेशन, आप थोड़ा बहुत प्रेशर भी ले सकते हैं, यू आर अ प्रॉब्लम सॉल्वर, मल्टीटास्किंग एबिलिटीज आप में है, ये मेंशन करो और इसके लिए स्टोरीज तैयार रखना। If somebody asks you how, you have written that you are a multitasker. So Vineet, can you give me an instance where you have been multitasking? How do you define yourself as a multitasker? Like 2 days before only the result time, I was managing the class also and I was taking the results also. That could be the one. That could be the one. Multitasking, especially when you were managing your graduation also, you were managing your CS studies also. And then there were several other things, balancing screen time, online, offline, ये सब चीजों का balance. तो इनकी ना 1-1 मिनट की short stories आपको पता होना चाहिए, आपको रेडी रखना चाहिए। मतलब जो भी आप अपने रिज्यूमे में मेंशन करते हो ना, उसके बारे में आपको सॉलिड 1-1, 2-2 लाइन का कम्युनिकेशन आपका तैयार होना चाहिए।
So you don't fumble. See, during the communication क्या होता है, as such strange of fear होता है कि पता नहीं कौन सा खड़ूस होगा सामने, पता नहीं कैसे सवाल पूछेगा सामने से. So now if you start fumbling, you lose confidence. Diffidence एक word है कि भाई जहां पर आप अपना self confidence तब lose करते हैं जब सामने वाला जो है ज्यादा authoritative position में होता है, आपसे ज्यादा powerful position में होता है, तो that is known as diffidence. So this is the way to overcome diffidence, to plan and to stay updated with your resume, right? To stay familiar with your resume. खुद बनाया है तो ये वाली प्रॉब्लम कभी आएगी नहीं. मोहित, हाय. अभी इंटरपर्सनल स्किल्स की बात हो गई, को करिकुलर पक्का मेंशन करो क्योंकि अभी यही आपके पास है और तो अभी हमने कुछ किया ही नहीं है ना. अभी तो सीए जर्नी हमारी बड़ी शुरू हुई, अब तो फाइनल लेवल पे हम आए, आर्टिकलशिप अब स्टार्ट हुई, तो अब जो भी आपने अभी आईसीआई वाले कोर्सेज किए ये भी आपको मेंशन करना चाहिए. को करिकुलर, पार्ट टाइम अगर आपने कुछ किया है, कॉलेज में अगर कोई कैंपेन किया, ये सारी चीजें आपको मेंशन जरूर करनी चाहिए. इंटरेस्ट एंड वॉलंटियरिंग इज अ गुड आइडिया. और सबसे ऊपर ना आप अपना नाम लिख करके आप अपना सोशल मीडिया लिंक और कॉन्टैक्ट नंबर भी जरूर दे सकते हैं सबसे ऊपर. दैट इज हाउ वी शुड स्टार्ट द रिज्यूमे, राइट? अचीवमेंट्स, एक्कलेज एंड पर्सनल डिटेल्स. पर्सनल डिटेल्स में बहुत लंबा चौड़ा नहीं, अपना नाम और एड्रेस, हम बेसिकली अपनी नेशनैलिटी दे सकते हैं और हम अपने पासपोर्ट डिटेल्स, इससे ज्यादा कुछ नहीं होता पर्सनल डिटेल्स में, राइट? आई हैव आल्सो क्लियर्ड बोथ ग्रुप्स इन फर्स्ट अटेम्प्ट. नीड योर गाइडेंस. मोहित, today was all about guidance. Hardest congratulations to you. ये वाला सेशन एक बार रिवाइंड करके देख लेना. After we finish here, you can always rewind and check. ठीक? So ये रहा, नेम रहेगा आपका, ठीक है? यहाँ पर ये नेम के साथ में आप अपना रिज्यूमे, सीवी की जगह आप रिज्यूमे देख सकते हो. कॉन्टैक्ट डिटेल्स हो गए. इसके अलावा आपका यहाँ पर जो है लिंक्डइन प्रोफाइल अगर है, सोशल मीडिया लिंक आप डाल सकते हैं. 4 to 5 लाइन ऑफ दीज ऑब्जेक्टिव्स हो सकते हैं, या ऑब्जेक्टिव्स के साथ में आप अगर करियर ऑब्जेक्टिव या करियर समरी, तो समरी तो आपका बनेगा नहीं भाई. समरी इज मोस्टली फॉर प्रोफेशनल्स हु हैव सम एक्सपीरियंस. सो व्हाट वी आर गोइंग टू पुट इज ऑब्जेक्टिव. ठीक? आर्टिकलशिप के लिए ऑब्जेक्टिव. कोर स्किल्स ये भी मैंने आपको बता दिया है. रोल आप क्या, व्हाट आर यू लुकिंग फॉरवर्ड टू, किस तरीके का डोमेन एक्सपर्टीज वगैरह आप क्या चाहते हैं, ये आप मेंशन कर सकते हैं. अपना इंटरेस्ट आप मेंशन कर सकते हैं. ठीक? एजुकेशनल क्वालिफिकेशंस एंड इंटरेस्ट. सो दिस इज these two are the basic templates to follow. Basic, most basic style. Yes. Right? So tell me what else. मैंने अपनी तरफ से तो सब बता दिया जितना मुझे लगता है अभी at this moment. Whatever is important for you, I told you. Anything else you may want to ask, you can. Suppose the articleship is started and we are continuing our studies also. So how should we be on the studies thing? Like sometimes office hours are extended. So हमें अपनी studies को क्या एकदम fix रखना चाहिए कि हाँ कि इतने दिन इतना पढ़ना ही है, या ऑफिस की टाइमिंग के अकॉर्डिंग थोड़ा फ्लेक्सिबल भी रहना चाहिए? What should be the better one? Yeah, very see, flexibility तो हमेशा होनी चाहिए आपके लिए. लेकिन मैं आपको ये बताऊं, इसलिए मैंने कहा था, देखो 3 years ना, ये जो टाइम हमको मिलता है, ICI has given us this time. ये भी 3 साल आपको अभी मिल रहे हैं. After 2.5 years, you can attempt your final. But the problem कहाँ आती है? I'm in consistent touch with all many final, thousands of CA final students. Problem आती है, लास्ट के 2 महीने में CA फाइनल हो जाएगा क्या मैम? 3 months में CA फाइनल हो जाएगा क्या मैम? हो जाएगा क्या प्रिपरेशन? वेल, हो जाएगा, क्यों नहीं हो जाएगा? अगर आपने पूरे 3 साल खाली नहीं रहे, अगर आपने खाक नहीं छानी है तो, राइट? सो यू हैव सो मेनी सब्जेक्ट्स. स्टार्ट फ्रॉम डे 1. देखो, आपको अगर कोचिंग क्लासेस भी लेनी है, आजकल कोचिंग क्लासेस नॉर्म हो गए. कई स्टूडेंट्स प्रेफर करते हैं हर सब्जेक्ट का ले लो. पहले ऐसा नहीं था भाई, लोग कुछ स्पेसिफिक सब्जेक्ट्स की क्लासेस लिया करते थे. सब सब्जेक्ट्स की जरूरत नहीं होती थी. मोस्टली द डिजाइन ऑफ दिस कोर्स इज सच दैट यू कैन प्रिपेयर ऑन योर ओन ऑल्सो. कई सारे भाई खुद भी करते हैं, लेकिन कोचिंग लेना कोई बुरी बात नहीं है. जहां आपको सब्जेक्ट में हेल्प की जरूरत है, आपको बिल्कुल हेल्प लेनी चाहिए अपने टीचर्स से, जो मास्टर्स हैं उस सब्जेक्ट के, उनसे बिल्कुल आप हेल्प लो. अब ये है कि आप 8 सब्जेक्ट्स की क्लासेस एक साथ लेके अगर आप 2 घंटा भी सोचो फाइनल में, पॉसिबल ही नहीं है. पॉसिबल ही नहीं. 16 घंटे की क्लास अगर आप करोगे, आपका ऑफिस है, मिनिमम 8 आवर्स आपका वो भी होता है. सो 24 तो यही हो गया. पॉसिबल नहीं है, राइट? सो दिस इज व्हाई वी आर सेइंग, यू नो, व्हाई आई एम टेलिंग यू कि ये एज ना आपको डिवाइड करने चाहिए.
कि यार आपका जैसे ये 3 है तो आप ना 3 मंथ्स 4 मंथ्स के चंक्स में, जैसे 3 to 6 मंथ्स में आप ये अपने सब्जेक्ट्स डिवाइड कर सकते हो कि मैंने पहले ना जैसे ग्रुप 1 3 पेपर्स 3 पेपर्स इस तरीके से मैं अपने सारे क्लासेस कर लूं। उसके बाद मैं सेल्फ स्टडी को 3 के साथ अगर आप करोगे ना तो रोज के रोज डेली आप अगर 2 hours भी दे देते हो, सेल्फ स्टडी शुड बी अ प्रैक्टिस like 90 minutes to 120 minutes every day। ये अगर आप रखते हो ना रोज तो आपकी प्रैक्टिस बन जाती है क्लासेस के साथ में। So see this course, what makes it tedious, what makes it difficult is not really the subjects or your, see basically it is all about results। ये results जो हैं कहीं ना कहीं limited होते हैं and vastness of the course, the design is such that the course is vast। Sometimes for a few subjects in CA final there is no limit कि अभी जब अमेंडमेंट्स आएंगे, जब बजट आएगा तब पता चलेगा कि कोर्स कितना है, तब पता चलेगा सिलेबस कितना है। सो देयर इज नो लिमिट, दिस इज व्हाट वी हैव टू एक्सेप्ट, राइट। तो इस केस में हम यही कर सकते हैं टू स्टे अपडेटेड, टू स्टे इन टच विथ योर स्टडीज एंड स्पेंड एटलीस्ट 90 to 120 मिनट्स एवरी डे। ये एक आदत में शुमार हो जाता है ना, फिर दिक्कत नहीं आती सीए फाइनल में, कभी प्रॉब्लम नहीं आती, बिकॉज आपको अपना भाई 7 से 8 घंटे देना ही है। ये ऑफिस का 8 hours हम कुछ कर नहीं सकते इसका। और अगर कई लोग ना ये डमी वगैरह के चक्कर में पड़ते हैं, इनको बहुत, अभी रिसेंटली there was this chartered accountant who reached out to me कि मैम मुझे बहुत दिक्कत हो रही है and I'm not able to clear interviews। So I was wondering कि भाई फर्स्ट अटेम्प्ट क्वालिफाइड है, क्यों नहीं क्लियर हो रहा, क्या प्रॉब्लम हो रही। So later during the conversation, when she booked a counseling session and I talked with her, I got to know कि भाई डमी लिया था ना, concepts clear ही नहीं है, books तो clear कर लिए पर कहीं ना कहीं पूरा जो applied knowledge है, जो पता होना चाहिए था, वो चीजें रह गई। So this is the backbone। You can't play around with these 8 hours। Yes, ये कर सकते हो कि 8 का 12 ना हो, वो आपकी अभी चॉइस बन जाएगी। वो अभी आप देख लो कि सीजनल बन जाए तो चलेगा, सीजनल ऑडिट है, कभी जीएसटी फाइलिंग है, कभी कुछ, तो वो चलेगा। लेकिन आप किस लेवल पे ले रहे हो भाई, रोज के अगर 12 घंटे हैं, रोज के अगर 14 घंटे हैं, एक्सपेक्टेशंस अगर इस लेवल पे है, तो फिर अगर आप बोथ ग्रुप्स प्लान कर रहे हो दैट कैन बी स्लाइटली ट्रिकी। सो किनका कैसे, अगर आपको एक एक ग्रुप देना है चल जाएगा, भाई आपकी प्लानिंग क्या है, हाउ डू यू सी योरसेल्फ moving in this course, moving forward in this course, है ना। So ये बहुत सारी choices जो हैं आपको अपने हिसाब से मैनेज करनी पड़ती है। कोर्स इज फ्लेक्सिबल, बड़े अलग अलग तरीके से लोग इस कोर्स को अटेम्प्ट करते हैं। कोई मेरे साथ वाले हैं भाई, कुछ एक दो हैं जो साथ साथ में हमने बोथ ग्रुप्स क्लियर किए थे, कुछ रैंक्स भी निकाले किसी ने, कुछ हुए जो एक एक ग्रुप पीछे छूट गए, फिर किसी ने 2 अटेम्प्ट बाद क्लियर किए। सो सब अपने अपने हिसाब से, बड़ी फ्लेक्सिबिलिटी यहाँ पर सबको ऑफर्ड है और ICI हैज बीन काइंड दैट वे। तो एक बहुत अच्छा आइडिया है कि इसको स्प्लिट कर लिया जाए सिलेबस को, 3 years को पूरा अपने जो मैंडेटरी ट्रेनिंग्स हैं, सब्जेक्ट्स हैं, स्टडीज हैं, एंड देन पूरा आपका कंप्लीट सेल्फ स्टडीज एक बार एग्जाम से पहले, दैट पीरियड शुड बी 2 to 2.5 months, जो हम एक्चुअली लीव की बात करते हैं कि हमको छुट्टी चाहिए और इसमें हमको। सो एनी प्रिंसिपल वुड अग्री ऑल्सो व्हेन यू स्प्रेड इट एंड यू हैव बीन कंसिस्टेंट एंड यू शो द साइंस ऑफ ब्राइटनेस एंड कमिटमेंट, प्रिंसिपल्स जनरली अग्री। ठीक, कुछ लग रहा है कि हाँ मैम ये कन्विंसिंग है? Yes, it's good, ma'am. And ma'am, suppose during the articleship only we should think about that after it's all done we should be going for practice or employment, और चलते चलते समझ में आ ही जाएगा कि कहाँ जाना है। बिल्कुल समझ में आएगा। देखो कॉन्टैक्ट्स बनते हैं। मैं तुम्हें ये भी बताऊं कि जो सीए फाइनल वाले जो सीनियर आर्टिकल्स होते हैं, फाइनल ईयर ऑफ लास्ट ईयर ऑफ देयर आर्टिकलशिप, कई तो क्लाइंट्स ही एब्जॉर्ब कर लेते हैं तो ऐसा भी होता है ना। सो यू कैन ऑलवेज थिंक अबाउट इट। देयर आर फ्यू आर्टिकल्स who know भाई we have to get into practice, nothing like practice। भाई मेरे को भी multiple clients चाहिए, मेरे को भी ये reputation enjoy करनी है, I want this much of market share in this particular city। कईयों का रहता है भाई we have to go back, I will make a nice office in my hometown and perhaps I'll spread my practice over there। तो ये चीजें ना आपके लिए, इसके लिए ये बहुत broad इसका spectrum है and you will get all the time to think about it, to get to know yourself better।
अपने बारे में भी तो बहुत सारी चीजें हम एक्सप्लोर करते हैं ना. The moment you start working, the moment you are in touch with professionals, the moment you start execution, the moment you deliver results, you will get to know a lot about yourself. एक छोटी सी कहानी मैं बताती हूँ. देख क्या, मैंने जब ज्वाइन किया था, अब मेरा फर्स्ट जॉब प्लेसमेंट्स के थ्रू ही था, तो मैंने ज्वाइन कर लिया अकाउंटिंग प्रोफाइल और मैंने खुशी खुशी ज्वाइन कर लिया. पैकेज वाज डिसेंट. क्या है, चार्टर्ड अकाउंटेंट, हाथ में जॉब. Within 3 months भी नहीं, 2 महीने में I realized this is not my cup of tea. मतलब अकाउंट्स मेरा कोर एक्सपर्टीज है. चार्टर्ड अकाउंटेंट को अकाउंट्स नहीं किया तो क्या किया, मेरा एक्सपर्टीज द हाईएस्ट मार्क्स रहे यूनिवर्सिटी में, सीए में, ऑल थ्रू. बट अब यहाँ मेरे को क्यों प्रॉब्लम हो रही है? Then is when I realized my core competence and my natural talent is towards consulting. I can pull it off very well. मैं जब हम आर्टिकलशिप पे भी थे तब भी हम ये काम ज्यादा किया करते थे. एडवाइजरी में मेरे को ज्यादा मजा आता था, लिटिगेशन मैटर्स में मेरे को ज्यादा मजा आता था. तो ये सारी जो चीजें हैं ये हमको कंसीडर करनी भी चाहिए. और जैसे जैसे आप आगे बढ़ोगे वैसे वैसे आपको अपने बारे में भी बहुत कुछ पता चलेगा. एंड आई एम श्योर यू विल बी एबल टू मेक अ गुड चॉइस देन. श्योरली मैम. ठीक, चलो, दिस वाज अ ग्रेट डिस्कशन. मुझे खुद भी बड़ा मजा आया विनीत के साथ बात करके. मेरी खुद भी काफी जो है पुरानी यादें आ गई, यहाँ पर ताजा हो गई. और विनीत, थैंक यू सो मच. आई होप at least a few, if not all, at least a few of your questions are cleared and you have some answers and direction to move forward, right? Definitely. So guys and girls, ये जो मैंने आपको अभी यहाँ पर suggest किया है टेम्पलेट वगैरह, resume tips, ये आप बिल्कुल use कर सकते हैं. And just to let you all know, you all can visit my LinkedIn profile. So you would get to know that I've been counseling students, I've been counseling chartered accountants, all age groups, all levels, young CAs, mid-level CAs, ठीक है, जो senior professionals होते हैं उनका group. So I've been doing this. This is the primary area of my work. So this is what makes me eligible to give you some guidance, to provide you these inputs. और भी अगर आपको कोई help चाहिए, you can connect with me over Unacademy, or you can follow me over LinkedIn. You can connect with me over there. So God bless you, and lots of good wishes to all of you for an exciting career ahead. Have a great life. Have a great career ahead. Take care. God bless you all. Thank you so much, ma'am. Thank you, Vinny. Thank you. Appreciate your coming over here, joining us here, and your time also. It's been